Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Samina Khan, lecturer, Southern Business School, Institute of Southern Punjab, Multan. We are going to start our lecture of Computer Application in Business. This is week 9 and lecture number 9. आज का हमारा टॉपिक है स्टोरेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिजिटल कम्युनिकेशंस के बारे में बात की और आज हम बात करेंगे स्टोरेज के बारे में। So the learning objectives of this lecture are storage, hard disks, external and removable hard disks, flash memory storage, cloud storage, optical disks and enterprise storage. So ये हमारे इस लेक्चर की learning objectives हैं। Starting with storage. Storage holds data, instructions and information for future use. For example, all types of users store digital photos, appointments, schedules, and contact or address information, correspondence such as letters, email messages, text records, and web pages. Storage requirements among users vary greatly. Home users typically have much smaller storage requirements than enterprise users. अब अगर हम storage की बात करें, तो as all of us know, कि स्टोरेज होल्ड करता है डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को और इंफॉर्मेशन को फ्यूचर यूज के लिए। अब तमाम तरह के यूजर्स डेटा को स्टोर करते हैं। इस डेटा में आपकी डिजिटल फोटोज हो सकती हैं, अपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं, स्केड्यूल्स हो सकते हैं, कॉन्टेक्ट या एड्रेस इंफॉर्मेशन हो सकती है। इसी तरह से कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकती है, जैसे कि लेटर्स, ईमेल मैसेजेस, टेक्स्ट रिकॉर्ड्स या वेब पेजेस। तो तमाम तरह के यूजर्स किसी न किसी तरह के डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं। अब ये स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स वेरी करती हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि होम यूजर्स की स्मॉलर स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स होती हैं एज कंपेयर टू एंटरप्राइज यूजर्स। सो स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स अमंग यूजर्स वेरी ग्रेटली। A storage medium, also called secondary storage, is the physical material on which a computer keeps data, instructions, and information. Examples of storage media are hard disks, memory cards, USB flash drives, smart cards, etc. Capacity is the number of bytes characters a storage medium can hold. A storage device is the computer hardware that records or retrieves items to and from storage media. Now storage medium जिसको हम secondary storage भी कहते हैं, कि वो physical material होता है जिस पर data, instructions और information को store किया जाता है। अब अगर हम storage media की examples की बात करें, तो इसमें hard disks, memory cards, USB flash drives और स्मार्ट कार्ड्स वगैरह आ जाते हैं। कैपेसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि कैपेसिटी नंबर ऑफ बाइट्स कैरेक्टर्स जो एक स्टोरेज मीडियम होल्ड कर सकता है, उसको हम कैपेसिटी कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस वो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है जो रिकॉर्ड करता है और रिट्रीव करता है आइटम्स को टू एंड फ्रॉम स्टोरेज मीडिया। Now, writing is the process of transferring data, instructions, and information from memory to a storage medium. Reading is the process of transferring these items from a storage medium into memory. When storage devices write data on storage media, they are creating output. Similarly, when storage devices read from storage media, they function as a source of input. Nevertheless, they are categorized as storage devices, not as input or output devices. अब हम writing और reading process की बात करते हैं। Writing वो process होता है जिसमें हम ट्रांसफर करते हैं डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को और इंफॉर्मेशन को मेमोरी से स्टोरेज मीडियम पर। अगर हम रीडिंग की बात करें, तो रीडिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें ट्रांसफर किया जाता है आइटम्स को स्टोरेज मीडियम से मेमोरी पर। अब जब ये स्टोरेज डिवाइसेस डेटा को राइट करते हैं स्टोरेज मीडिया पर, तो ये आउटपुट क्रिएट कर रहे होते हैं। इसी तरह से जब स्टोरेज डिवाइसेस रीड करते हैं फ्रॉम स्टोरेज मीडिया, तो वो फंक्शन करती हैं एज सोर्स ऑफ इनपुट, लेकिन हम इन्हें स्टोरेज डिवाइसेस कंसिडर करते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंसिडर नहीं करते। द स्पीड ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस इज डिफाइंड बाय एक्सेस टाइम।
Access time measures the amount of time it takes a storage device to locate an item on a storage medium. Storage devices की स्पीड को डिफाइन किया जाता है एक्सेस टाइम की मदद से। एक्सेस टाइम मेजर करता है टाइम को कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है स्टोरेज डिवाइस को कि वो लोकेट कर सके स्टोरेज मीडियम पर एक आइटम को। सो स्टोरेज डिवाइसेस की स्पीड को डिफाइन किया जाता है बाय एक्सेस टाइम। Now hard disks. A hard disk is a storage device that contains one or more inflexible circular platters that use magnetic particles to store data, instructions and information. The system unit on most desktop and notebook computers contains at least one hard disk. The entire device is enclosed in an airtight sealed case to protect it from contamination. A hard disk that is mounted inside the system unit sometimes is called a fixed disk because it is not portable. With respect to a storage medium, the term portable means you can remove the medium from one computer and carry it to another computer. अब अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो as all of us know कि हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम डेटा, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। अब आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और नोटबुक कंप्यूटर्स में जो सिस्टम यूनिट होता है उसमें एटलीस्ट एक हार्ड डिस्क होती है। ये डिवाइस इनक्लोज्ड होती है एयर टाइट सील्ड केस में ताकि कंटामिनेट ना हो। अब वो हार्ड डिस्क जो माउंटेड होती है इनसाइड द सिस्टम यूनिट उसको हम फिक्स डिस्क कहते हैं क्योंकि ये पोर्टेबल नहीं होती। स्टोरेज मीडियम के पर्सपेक्टिव में स्टोरेज मीडियम के हवाले से टर्म पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि आप मीडियम को रिमूव कर सकते हैं कंप्यूटर से और दूसरे कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं। सो आपकी जो फिक्स डिस्क होती है वो पोर्टेबल नहीं होती। नाउ एक्सटर्नल एंड रिमूवेबल हार्ड डिस्क्स। A removable hard disk is a hard disk that you insert and remove from a drive. External and removable hard disks offer the following advantages over internal hard disks. Transport a large number of files, easily store large audio and video files, secure your data. For example, at the end of a work session, remove the hard disk and lock it up, leaving no data in the computer. Add storage space to a notebook computer. Add storage space to a desktop computer without having to open the system unit or connect to a network. Removable hard disk वो हार्ड डिस्क होती है जिसको आप इंसर्ट और रिमूव कर सकते हैं ड्राइव से। एक्सटर्नल और रिमूवेबल हार्ड डिस्क के कुछ एडवांटेजेस होते हैं ओवर इंटरनल हार्ड डिस्क और इन एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये ट्रांसपोर्ट कर सकती है लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स। ये लार्ज ऑडियो और वीडियो फाइल्स को स्टोर कर सकती है। ये आपके डेटा को सिक्योर रखती है कि एक्सटर्नल और रिमूवेबल हार्ड डिस्क में आप अपना डेटा सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ बात कर रही है कि एट द एंड ऑफ अ वर्क सेशन आपने हार्ड डिस्क रिमूव कर ली तो आपका डेटा सेव हो जाता है और कंप्यूटर पर आप डेटा नहीं छोड़ रहे होते बल्कि अपनी हार्ड डिस्क में सेव कर रहे होते हैं। इसी तरह से नोटबुक कंप्यूटर में स्टोरेज स्पेस ऐड की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ हार्ड डिस्क। इसी तरह से स्टोरेज स्पेस ऐड की जा सकती है डेस्कटॉप कंप्यूटर में कि आप सिस्टम यूनिट को ओपन किए बगैर और नेटवर्क से कनेक्ट हुए बगैर स्टोरेज स्पेस ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एंड रिमूवेबल हार्ड डिस्क। नाउ फ्लैश मेमोरी स्टोरेज। Flash memory is a type of non-volatile memory that can be erased electronically and rewritten. Flash memory chips are a type of solid-state media, which means they consist entirely of electronic components such as integrated circuits and contain no moving parts. The lack of moving parts makes flash memory storage more durable and shock-resistant than other types of media such as magnetic hard disks or optical disks. Types of flash memory storage include solid-state drives, memory cards, USB flash drives, and express card modules. अब flash memory non-volatile memory होती है जिसको आप erase कर सकते हैं electronically और rewrite कर सकते हैं। Flash memory storage में memory cards, USB flash drives और express card modules आ जाते हैं। Flash memory storage ज़्यादा durable और shock resistant होती है as compared to other media such as magnetic hard disk or optical disks. Now cloud storage.
Some users choose cloud storage instead of storing data locally on a hard disk or other media. Cloud storage is an internet service that provides hard disk storage to computer users. Users subscribe to a cloud storage service for a variety of reasons. To access files on the internet from any computer or device that has internet access, अब कुछ यूजर्स प्रेफर करते हैं क्लाउड स्टोरेज को इंस्टेड ऑफ हार्ड डिस्क और अदर मीडिया. क्लाउड स्टोरेज इंटरनेट सर्विस है जो आपको हार्ड डिस्क स्टोरेज प्रोवाइड करती है. अब यूजर्स की डिफरेंट रीजन हो सकती है क्लाउड स्टोरेज को सब्सक्राइब करने की. फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं फाइल्स को ऑन द इंटरनेट, कि किसी भी कंप्यूटर से अगर आप फाइल्स को एक्सेस करना चाहते हैं इंटरनेट पर, in the same way to allow others to access their files on the internet so that others can listen to an audio file, watch a video clip or view a photo instead of emailing the file to them. To view time critical data and images immediately while away from the main office or location, for example, doctors can view X-ray images from another hospital, home or office. To store off-site backups of data, to provide data center functions, relieving enterprises of this task. इसी तरह से क्लाउड स्टोरेज की मदद से दूसरे लोग एक्सेस कर सकते हैं आपके फाइल्स को इंटरनेट पर, कि आप अगर ईमेल नहीं करना चाह रहे हैं और उनको एक्सेस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो क्लाउड स्टोरेज की मदद से आप ये एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं. इसी तरह से आप टाइम क्रिटिकल डाटा व्यू कर सकते हैं इमीडिएटली, कि अगर आप मेन ऑफिस से या लोकेशन से दूर हैं और आप डाटा को इमीडिएटली देखना चाहते हैं तो आप क्लाउड स्टोरेज की मदद से डाटा को इमीडिएटली ट्रांसफर कर सकते हैं या व्यू कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स एक्सरे इमेजेस देख सकते हैं, वो इमेजेस जो किसी और हॉस्पिटल में हैं या किसी और लोकेशन से आपके पेशेंट्स आपको वो इमेजेस भेज रहे हैं, तो आप क्लाउड स्टोरेज की मदद से उन इमेजेस को देख सकते हैं. नाउ ऑप्टिकल डिस्क्स. ऑप्टिकल डिस्क्स प्राइमरीली स्टोर सॉफ्टवेयर, data, digital photos, movies and music. Some optical discs formats are read-only, meaning users cannot write on the media. Others are read-write, which allows users to save on the disk just as they save on a hard disk. Nearly every personal computer today includes some type of optical disk drive installed in a drive bay. On some, you push a button to slide out a tray, insert the disk, and then push the same button to close the tray. Others are slot-loaded, which means you insert the disk in a narrow opening on the drive. Optical discs primarily store करती हैं सॉफ्टवेयर को, डेटा को, डिजिटल फोटोज को, मूवीज को और म्यूजिक को. अब कुछ ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट्स रीड ओनली होते हैं. इसका मतलब है कि यूजर्स उस पर सेव नहीं कर सकते, लेकिन कुछ आपकी ऑप्टिकल डिस्क रीड राइट होती हैं, जिसका मतलब ये होता है कि यूजर सेव कर सकते हैं इन डिस्क्स पर. जिस तरह से आप हार्ड डिस्क पर सेव करते हैं आप इन डिस्क्स पर भी सेव कर सकते हैं. अब तमाम पर्सनल कंप्यूटर्स में आपके पास ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव होती है इंस्टॉल्ड इन अ ड्राइव पे. मूविंग ऑनवर्ड्स, अब हम बात करेंगे सीडीज की. A CD-ROM or compact disc read-only memory is a type of optical disc that users can read but not write or erase, hence the name read-only. Manufacturers write the contents of standard CD-ROMs. A standard CD-ROM is called a single session disk because manufacturers write all items on the disk at one time. Software manufacturers often distribute programs using CD-ROMs. CD-ROM और compact disk read-only memory वो ऑप्टिकल डिस्क होती है जिसको यूजर्स रीड कर सकते हैं लेकिन उस पर राइट नहीं कर सकते. सो इसके लिए हम रीड ओनली की टर्म यूज करते हैं. अब मैन्युफैक्चरर्स कंटेंट्स रिकॉर्ड करते हैं CD-ROMs पर और इनको हम सिंगल सेशन डिस्क कहते हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स तमाम आइटम्स को डिस्क पर एक ही दफा रिकॉर्ड करते हैं. सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर्स की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोग्राम्स को यूजिंग CD-ROMs. Now a CD compact disc rewritable is an erasable multi-session disk you can write on multiple times. To write on a CD disk you must have CD software and a CD rewritable drive.
A popular use of CD discs is to create audio CDs. For example, users can record their own music and save it on a CD, purchase and download songs from the web, or rearrange tracks on a purchased music CD. The process of copying audio or video data from a purchased disc and saving it on a digital media is called ripping. अब अगर हम कम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल की बात करें तो ये इरेजेबल मल्टी सेशन डिस्क होती है जिसको आप मल्टीपल टाइम्स राइट कर सकते हो। अब इसके लिए आपको स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है और ड्राइव की जरूरत होती है। Now DVDs. Although the size and shape of a CD and a DVD are similar, a DVD stores data, instructions and information in a slightly different manner and thus achieves a higher storage capacity. DVD quality also far surpasses that of CDs because images are stored at high resolution. अब अगर हम DVDs की बात करें तो DVD पे भी हम डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को और इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, लेकिन डिफरेंट मैनर में एज कंपेयर टू दैट ऑफ सीडीज। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी हाई होती है एज कंपेयर टू सीडीज। इसी तरह से डीवीडी क्वालिटी भी सीडी की क्वालिटी से ज्यादा अच्छी होती है बिकॉज इमेजेस को स्टोर किया जा रहा होता है एट हायर रेजोल्यूशन। नाउ टेप. One of the first storage media used with mainframe computer was tape. Tape is a magnetically coated ribbon of plastic capable of storing large amounts of data and information at a low cost. Tape no longer is used as a primary method of storage. Instead, business users utilize tape most often for long-term storage and backup. अब अगर हम बात करें टेप की तो वन ऑफ द फर्स्ट स्टोरेज मीडिया जिसको मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में यूज किया गया वाज टेप। नाउअडेज टेप को प्राइमरी मेथड ऑफ स्टोरेज कंसीडर नहीं किया जाता। इंस्टेड बिजनेस यूजर्स यूटिलाइज करते हैं टेप को मोस्ट ऑफन फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज एंड बैकअप। नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड्स एंड स्मार्ट कार्ड्स की। अ मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड इज अ क्रेडिट कार्ड, एंटरटेनमेंट कार्ड, bank card or other similar card with a stripe that contains information identifying you and the card. Information stored in the stripe includes your name, account number, and the card's expiration date. A magnetic stripe card reader reads information stored on the stripe. A smart card, which is similar in size to a credit card or ATM card, stores data on a thin microprocessor embedded in the card. Smart cards contain a processor and have input, process, output, and storage capabilities. When you insert the smart card in a specialized card reader, the information on the smart card is read and, if necessary, updated. A magnetic stripe card, credit card, entertainment card, bank card या इसी तरह का कोई कार्ड हो सकता है जिसमें तमाम इंफॉर्मेशन स्ट्राइप पर मौजूद होती है। अब इस इंफॉर्मेशन में आपका नाम, अकाउंट नंबर और कार्ड की एक्सपायरेशन डेट शामिल होती है। मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड रीडर रीड करता है इंफॉर्मेशन जो स्ट्राइप पर मौजूद होती है। स्मार्ट कार्ड, जिसका साइज क्रेडिट कार्ड या आपके एटीएम कार्ड जितना होता है, वो डेटा को स्टोर करता है थिन माइक्रो प्रोसेसर पर जो एम्बेड होता है ऑन द कार्ड। अब स्मार्ट कार्ड में प्रोसेसर होता है और इसमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज कैपेबिलिटीज मौजूद होती हैं। जब आप इंसर्ट करते हैं स्मार्ट कार्ड को स्पेशलाइज्ड कार्ड रीडर में तो इंफॉर्मेशन स्मार्ट कार्ड पर जो मौजूद होती है उसको रीड किया जाता है और अगर जरूरत हो तो उसको अपडेट भी किया जा सकता है। नाउ एंटरप्राइज स्टोरेज. A large business, commonly referred to as an enterprise, has hundreds or thousands of employees in offices across the country or around the world. Enterprises use computers and computer networks to manage and store huge volumes of data and information about customers, suppliers, and employees. To meet their large-scale needs, enterprises use special hardware geared for heavy use, maximum availability, and maximum efficiency. One or more servers on the network have the sole purpose
of providing storage to connected users. For high-speed storage access, entire networks are dedicated exclusively to connecting devices that provide storage to other servers. As we know कि large business जिसको हम enterprise कहते हैं, उनके hundreds of thousands of employees हो सकते हैं across the country or around the world. अब enterprises computers use कर रही होती हैं, computer networks use कर रही होती हैं, डेटा को मैनेज और स्टोर करने के लिए. इस डेटा में आपके कस्टमर्स का डेटा भी हो सकता है, सप्लायर्स का डेटा भी हो सकता है और एम्प्लॉयज का डेटा भी हो सकता है. तो इन लार्ज स्केल नीड्स को मीट करने के लिए एंटरप्राइजेस यूज करती हैं स्पेशल हार्डवेयर जो हैवी यूज के लिए होते हैं, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी को इंश्योर करते हैं और मैक्सिमम एफिशिएंसी को इंश्योर करते हैं. अब इस नेटवर्क में एक या एक से ज्यादा सर्वर्स सिर्फ स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं कनेक्टेड यूजर्स को. जिस तरह से हमने पहले बात की थी कि डिफरेंट यूजर्स की स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं, होम यूजर्स की डिफरेंट हो सकती हैं, एंटरप्राइज यूजर्स की डिफरेंट हो सकती हैं, तो इन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग स्टोरेज कैपेसिटीज प्रोवाइड की जाती हैं. आज हमने स्टोरेज की बात की, हार्ड डिस्क की बात की, एक्सटर्नल एंड रिमूवेबल हार्ड डिस्क की बात की, फ्लैश मेमोरी स्टोरेज की बात की, क्लाउड स्टोरेज की बात की, ऑप्टिकल डिस्क्स की बात की और एंटरप्राइज स्टोरेज की बात की. यहाँ पर हम अपने इस लेक्चर को एंड करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.